اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواجہ آصف صاحب، پارلیمنٹری لیڈر قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے، خالد مقبول صدیقی صاحب، پارلیمنٹری لیڈر ایم کیو ایم پاکستان کے، محترم حامد میر صاحب، ان کا تعارف تو میرے سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کی جد و جہد کا بھی۔ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں تو پھر وہ کراچی والی باتیں ہو جاتی ہیں، تو اس لیے نہ ہی کچھ کہا جائے تو بہتر ہے۔ سعد بھائی ایک میں اس گھر کا حصہ ہوں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں، اور اسی طرح سلمان صاحب بھی، ایم این اے صاحبان، ایم پی اے صاحبان، کاؤنسلر صاحبان، چیئرمین صاحبان، دوسری جماعتوں سے تشریف جو لے کے آئے ہیں دوست، وہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں زعیم قادری صاحب کا نام لینا بھول گیا، چھوٹے بھائی زعیم قادری صاحب۔ سعد رفیق صاحب کی بات کے بعد، گفتگو کے بعد میں نہ ہی بات کروں تو بہتر ہے۔ میں نے کچھ پانی پیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کا خون تیز چلنا شروع ہو جائے ایسی باتیں سننے کے بعد، تو لمبی سانس لینی چاہیے، پانی پینا چاہیے اور درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ میرے سینے میں بہت ایسی چیزیں دفن ہیں جو کہ اگر بتا دوں گا تو شاید اپنے آپ کو نقصان کروں گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے فائدے میں نہیں، مگر ان میں سے بہت سی چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں۔ یہ جو پچھلی حکومت کا سفر شروع ہوا، یہ 22-21 سال پہلے جو کہتے ہیں وہ نہیں شروع ہوا، یہ اصل سفر شروع ہوا تھا 2017 کے آخری چند ماہ میں، جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، ان کے دوست، جی ڈی اے، ان کے دوست آ کے مجھے وقت بتاتے تھے کہ کتنے بجے کس نے ان کو کہاں پہ بلا کے یہ کہا کہ اپنی جماعت چھوڑ لو اور اس جماعت کو جوائن کرو کیونکہ اگلی حکومت ان کی ہے۔ وہ سفر تھا جس کی بنیاد اصل رکھی جا رہی تھی عمران خان کو لانے کے لیے، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے، اور وہ سلیکشن تبھی شروع ہو گئی تھی۔ الیکٹیبلز کو توڑو، وہ آتے تھے، شروع میں مجبور ہوتے تھے، پھر دباؤ میں آ جاتے تھے، اپنی بے بسی بھی ظاہر کرتے تھے، مگر وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سفر تھا، اور اس سفر کی وجہ سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب سے بہتر شاید کوئی نہ بتا سکے، چونکہ تقریباً روز وہ ایک میٹنگ لیتے ہیں معیشت کے اوپر۔ اسحاق ڈار صاحب کا اپنا ایک رول ہے، مگر وہ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح ان چیزوں سے بچا سکے جو پچھلی حکومت کر کے گئی۔ میں مثال دیتا ہوں، 3000 ارب کا قرضہ 1947 سے لے کے 2018 تک پاکستان نے لیا، اور 2018 جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 10 اپریل 2022 تک 44 مہینے میں انہوں نے اس 30,000 ارب کے قرضے کو 60,000 ارب کر دیا، دگنا کر دیا، جو 71-72 سالوں میں تھا، جو کہ انہوں نے صرف 3.25 سال میں لیا۔ اسی طرح پاور کا جو سرکولر ڈیٹ تھا 1100 ارب سے شاید 2.4 ٹریلین پہ پہنچ گیا، گیس کا 300 ارب سے 1.4 ٹریلین پہنچ گیا، اور 44 مہینے میں، چونکہ جو وزارت کا قلم دان میرے پاس ہے اس میں یہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ 45 ارب ڈالر کا مزید قرضہ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کے اوپر بوجھ ڈالا صرف 44 مہینوں میں۔ یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی، کون سی موٹر وے بنی، کون سا پاور پلانٹ لگا، کون سی نہریں کھدیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ گوگا اور گوگی ہوتا رہا۔
शहबाज शरीफ साहब की पहली तकरीर कौमी असम्बली में उन्होंने मईशत के ऊपर बात की कि आओ मिसाक मईशत करें और बैठ के पाकिस्तान के मसाइल को इकट्ठे देखें। और उन साहब ने मजाक में उड़ा दिया कि हमारे पास तो पोस्टर बॉयज़ हैं और वो जब आएंगे और वो ऐसी तब्दीली लाएंगे कि पाकिस्तान में दूध की नहरें बहेंगी, महंगाई तोड़ दी जाएगी, हर चीज़ सस्ती होगी, रोज़गार होगा। बल्कि यहाँ तक उनके कुछ लोग टीवी पे बैठ के कहते थे कि कुछ दिनों के बाद लोग पाकिस्तान नौकरी लेने आया करेंगे। हर चीज़ ज़बानी, फेसबुक, ट्विटर, असलियत सिफर और सिर्फ सिफर। इन्होंने बातें तो बहुत करने की, बट मैं भी सुनना चाहूँगा खालिद मकबूल साहब कराची से तशरीफ़ लाएँ, हामिद मीर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की बातें। मगर मैं ये बताऊं कि जब इन्होंने फैसला किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई, जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं अपोजिशन के, इनमें से किसी को या कौमी असम्बली में या सेनेट में किसी को इस पॉलिसी का नहीं पता था। और अब जब दहशत गर्दी के वाक़यात केपी में हो रहे हैं, हमारे नौजवान फ़ौज के, पुलिस के, एफसी के लोग शहीद हो रहे हैं, तो खान साहब ने चीफ मिनिस्टर को, जो सूबे को लीड कर रहा है, लाहौर में बुला के बिठाया है। तो वहाँ कौन लीड कर रहा है? वहाँ क्या ब्यूरोक्रेसी लीड कर रही है? जिसको ये एहसास नहीं कि मुझे सूबे में होना चाहिए, मुझे जाके बैठना चाहिए कि स्वात और ट्राइबल एरिया में जो दहशत गर्दी हो रही है, ये उसी तरह है जिस तरह सैलाब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब रोज़ सिंध और बलूचिस्तान, पंजाब और केपी जा रहे थे और ये जलसा कर रहे थे। एहसास नहीं है, अपनी ज़ात से आगे ये देखना पसंद नहीं करते। और मैं ये भी कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब से कहिएगा कि ज़रूर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे अपॉइंट हुआ था वो भी कहानी सुना दें। मगर मैंने कल भी ये बात की, मुख्तसर बात ही करना चाहूँगा ताकि सुने इनको। कल भी मैंने बात की, इंसान की खसलत कभी तब्दील नहीं होती, जो खसलत होती जाती, और अब तो मौसूफ की उम्र भी पक्की हो गई है, तो इसलिए खसलत बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन दी शौकत खानम बनाने के लिए, उस ज़माने में 50 करोड़ रुपए दिए। उसके बाद अपनी जेब से पूरा ख़ानदान पैसे देता था शौकत खानम के लिए। एहसान किया ना, ताकि उसका अस्पताल खड़े हो जाए। फिर बाजवा साहब ने 2017 में जो मिशन लिया था अपने ऊपर, उन्होंने भी एहसान किया। और वो एहसान सिर्फ तब नहीं किया कि वो हुकूमत में लेके आए उनको, वो 44 महीने, 44 नहीं को 2-4 कम कर लें, वो उनको मदद करते रहे कि ये किसी तरह खड़े रहें। अब वो बैसाखियाँ उनके पास नहीं है, उनको मदद करते रहे। उसी तरह जब 2018 का इलेक्शन हुआ, पंजाब में अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की, जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ में लोग लेके आते थे, उन्होंने भी इमरान खान पे एहसान किया। अलीम खान साहब फंड करते थे। तो हज़रत अली का कौल याद आता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। और परवेज़ इलाही साहब, ये सोच लें, आपने भी एहसान किया, उनके शर से ज़रूर डरिएगा। असेंबली की बात करते हैं, असेंबलियां तोड़ देंगे। कौमी असेंबली में पिछला ड्रामा तो मैंने देखा था, आना भी नहीं चाहते थे, बाहर बैठ के गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे, मगर इस्तीफे भी नहीं देते थे। जब नोटिस दिया गया तो पूरी टीम आ गई। इस्तीफे जब देने होते हैं तो हाथ से लिख के एक एक को आना पड़ता है। स्पीकर वक्त देते हैं, वक्त देने के बाद इस्तीफा पेश किया जाता है, बताया जाता है कि उनके ऊपर कोई जोर, कोई दबाव तो कहीं से नहीं है। इन्होंने अभी भी जो इस्तीफे दिए, इकट्ठे इस्तीफे दे दिए। शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में आए, तकरीर की, मैंने कहा जी इस्तीफा दिया, ज़रा आके मुझे बता तो दें इस्तीफे के बारे में। पीछे मुड़ के नहीं देखा, पत्थर के ना बन जाए, निकल गए। अब फिर
उस दिन हम असेंबली में इंतज़ार करते रहे, एक बिल पास करना था, असेंबली में इंतज़ार करते रहे कि आज शायद वो तशरीफ़ लाएंगे। अच्छी बात है, हाउस में आएंगे, बैठेंगे, हिस्सा बनेंगे, हिस्सा बन के यहाँ हुकूमत की पे तनकीद भी करेंगे और सिस्टम एक चलेगा। वो सिस्टम नहीं चलाना चाहते। ज़ात अगर उनकी बच गई तो फिर सिस्टम भी बचेगा, ज़ात ना बची तो सिस्टम रहे या ना रहे। इंतज़ार करते रहे, नहीं आया, पता चला कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब असेंबली का सेशन प्रोग हो गया तो कहते हैं हम 28 तारीख को आ रहे हैं और स्पीकर को हम इस्तीफे देंगे। स्पीकर साहब तो शहर में नहीं है, वो तो लड़काना में है, तो ये किसको इस्तीफे देने आएंगे? ये सब ड्रामेबाजी है, ये सब। मगर अगर इस्तीफे देने आते हैं और अगर अकेले अकेले पेश हो गए तो लिख लीजिए, कई इनके मेंबर आके अंदर कहेंगे कि जी जबरदस्ती दिलवाए जा रहे हैं, मेरा इस्तीफा रिजेक्ट कर लें। कई मेंबर इनके ये कहेंगे कि मैं नहीं देना चाहता। फिर ये एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, ये लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि अगर इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए तो कुछ लोग हैं उनमें इनको नहीं देना, इनको इसलिए नहीं देना कि ये शायद हमारे साथ ना खड़े हो, किसी और को टिकट देना है। उनको ये भी पता है, जब ये पता होगा तो वो भी इस्तीफे सोच के देंगे कि शायद हम अगली दफ़ा हमें टिकट भी ना मिले। और फिर कुछ ऐसे हैं जिनको बैसाखियों का सहारा चाहिए, वो अब हैं नहीं बैसाखियाँ। वो पूछेंगे तो किससे पूछेंगे कि क्या हम इधर रहें या हम कोई और जगह ढूंढें? कुछ दोस्त राब्ते करते हैं कि जी क्या होना है, तो हम तो यही कहते हैं वही होना है, जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। तुम लोग परेशान मत हो, अब अपने पैरों पे भी खड़ा करना सीख लो। अफसोस से कहना पड़ता है कि खान साहब की सारी सियासत जो है अपनी ज़ात से बाहर नहीं है। उनकी ज़ात है तो सब कुछ है, अगर ज़ात नहीं तो कुछ भी नहीं। वो इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे वो किसी तरह मिल जाए, और बार बार ललकारते हैं उनको जिन्होंने 4 साल, पौने 4 साल उनको सहारा दिया। अब वो सहारा है कोई नहीं। अब सहारा जमहूरियत का होगा, अब सहारा उसका होगा जो खिदमत करेगा। मगर मैं भी साद रफ़ीक साहब की तरह ज़रा सा मायूस हूँ जमहूरियत से कि हम करना क्या चाहते थे, बांध दिए गए हाथ और ना करने दिया गया। और आज मुल्क उस जगह खड़ा है जहाँ तकलीफ़ होती है कि अपनी नौजवान नस्ल को, अपनी औलाद को हम क्या कौन सा पाकिस्तान दे के जा रहे हैं। और आज भी मैं कहता हूँ इस फोरम की खातिर, इस फोरम की वसातत से, कि अगर हम सब मिल के इकट्ठे ना बैठे पाकिस्तान की खातिर एक ऐसा चार्टर करने में जिसमें इकॉनमी भी हो, जिसमें दहशतगर्दी के ऊपर भी एक आवाज़ हो, जिसमें पाकिस्तान के सारे मसाइल, हमें पानी की किल्लत होने वाली है, हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें बिजली के मसाइल किस तरह हल करने, क्या ये जो डिबेट चल रही है कि मार्केट अगर बंद कर दें, ये ख्वाजा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़रूर इस पे बात करें कि अगर थोड़ा सा सब कोऑपरेट करें, एक पाकिस्तानी अशिया ख़रीदनी शुरू कर दें और बाहर की अशिया ख़रीदनी बंद कर दें। दूसरा, बिजली, जिस तरह कहते हैं ना, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ पाकिस्तान में बनता है। दूसरी, हम बिजली कम इस्तेमाल करें, ना सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करें, कोई ऐसे तरीके देखें जिसमें अरबों रुपए का पाकिस्तान की बचत हो सकती है। इन्होंने 85 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर ली कि इकॉनमी ग्रो कर रही है, और रिमिटेंस और एक्सपोर्ट तकरीबन 63 या 65 अरब की थी, तो बाकी 20 अरब कहाँ से आया? वो भी कर्जा ले लिया। इस तरह काम नहीं चलता। लोग कहते हैं एलसी नहीं खुल रही, इन्होंने डॉलर को छोड़ा हो तो एलसी खुले। ऊपर से जाते जाते ये भी कह गए कि आईएमएफ पैसे ना देना। उससे नुकसान किसको होना था? मुस्लिम लीग नून को, पीडीएम को, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को नहीं होना था, पाकिस्तान को नुकसान होना था। और पाकिस्तान का नुकसान हम सब का नुकसान है, मगर शायद इमरान खान साहब की ज़ात जो है ना, उससे एग्जेम्प्टेड है। सो मैं मौका, दिल तो बहुत चीज़ें बातें करने का है, इसलिए कि बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कभी मौका नहीं मिलता।
मगर यहाँ जो मौका मिल जाता है, और अल्लाह ताला साद रफ़ीक साहब के वालिद साहब के दर्जात बुलंद करे और इनको तौफीक दे कि ये जिस मिशन पे चले हैं वो मिशन पूरी करें। हमारा तो वो तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी कई साल बड़ा हूँ। मैं तो खुद सोचता हूँ कि अब सियासत में इज़्ज़त नहीं रही, अब सियासत में गालम गलोच का जो कल्चर आया है, ये हमारे बुज़ुर्गों की तरबियत नहीं थी, ये उनके बुज़ुर्गों की तरबियत हो सकती, हमारों के नहीं थी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।